Hello children. Today we will start first chapter of History class 10th. This is the rise of nationalism in Europe. First of all we will come to know what is nationalism. Nationalism is a feeling of love or pride for your own country or the desire of a group of people who share the same race, culture, language, or different language, culture, or having a common territory to form an independent country. So we will see in this chapter how this feeling of nationalism यानी ये राष्ट्रीयता की फीलिंग यूरोप में कैसे आई और आज जिस यूरोप के मैप को हम लोग देखते हैं तो हाउ दिस मैप came into existence. First of all, go through the map of Europe which you presently use. This is the map of Europe. You can see here present Spain, present France, especially you try to focus on present Germany, present Italy, and Belgium. We will see in this chapter unification of, especially unification of Germany, formation of Italy and Hungary, and here Austria also. So you will go through these in this chapter. Okay, how the present boundaries of France, Germany, Italy, Austria, Hungary, these present borders were formed, and many small countries which you can see here, Romania, Bulgaria, Ukraine, how these countries were formed, and how the present border of Europe came into existence. That you have to read in this chapter. First of all, go through this picture. This picture is made by Frederick Soriot, and you can see here this is the Statue of Liberty. This is the Statue of Liberty, and you know this Statue of Liberty is a female allegory of liberty. It means liberty is represented in a female figure. And you can see here there is a long train. ये ट्रेन तो एक्चुअली नहीं है बट पीपल आर मूविंग लाइक अ ट्रेन और इसमें दे आर कैरिंग डिफरेंट नेशनल फ्लैग्स और इसमें जो सबसे आगे है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्योंकि वो बहुत पहले बन चुका था उसके पीछे है स्विट्ज़रलैंड एंड देन उसके पीछे है अगेन फ्रांस एंड देन different countries Germany and different countries are moving towards it. So it means they all are moving towards female allegory of liberty. This is a statue of liberty. और तुम लोग यहाँ देख रहे हो here you can see they are angels. They are looking upon this change which are coming. यानी ये लोग एक ऐसे रास्ते में हैं यानी इस रास्ते में वो लोग उन लोगों का जो डेस्टिनेशन है दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक और ये एंजल जीसस क्राइस्ट एंजल वाई दे आर वाचिंग क्योंकि ये लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से वर्ल्ड जो है वो डेमोक्रेसी के कारण अब an environment will be created that will be the environment of brotherhood fraternity. So due to this symbols of different divine symbols are here and they are presenting brotherhood and fraternity. तो इस पेंटिंग को बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने और मोटिव क्या था इस पेंटिंग को बनाने के पीछे वाई ही मेड दिस पेंटिंग यू विल बी सरप्राइज दैट दिस पेंटिंग विल बी वाज मेड इन 1848 और उस समय वर्ल्ड के जिन कंट्रीज़ को अभी तुम लोग जिस मैप को देख रहे थे यानी यूरोप के इस मैप को देख रहे थे तुम लोग दिस प्रेजेंट मैप ऑफ यूरोप this present map of Europe and again you will go through this map of Europe you will see there was a lot of difference. You can see here in place of Germany there were different small states. In place of Austria Hungary there was Austrian Empire and in place of Italy there were many important states. तो फ्रेडरिक सोरियो ने उस समय जब इस पिक्चर को उन्होंने 1848 में बनाया तो उन्होंने उस समय इमेजिन किया एक ऐसे वर्ल्ड को जो कि डेमोक्रेटिक होगा और जिसमें सोशल रिपब्लिक होंगे
तो सारे लोग जो है एक ट्रेन की तरह उन्होंने एक लाइन बनाया एंड दे वर पेइंग देयर होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और लिबर्टी को यहाँ फीमेल एलिगोरी के रूप में दिखाया गया था। सी वॉज कैरिंग अ टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट, यानी एक ऐसा समय आएगा जब लोग जागेंगे, जब उन्हें पता चलेगा, दे विल हैव नॉलेज, दे विल come to know about what is correct, what is not correct. They can differentiate. So these things will come and we will form a world of democracy and social republic. तो ये इमेजिन किया था 1848 में फ्रेडरिक सॉरियो ने, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। और आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू डिफरेंट circumstances that finally resulted into formation of democratic and social republics in different countries of Europe. Now come in the next topic, the French Revolution and the idea of nation. अब देखो ये why we are talking about French Revolution. क्लास 9th में तुम लोग पढ़ चुके हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कहा जाता है कि व्हेन फ्रांस sneezes the whole यूरोप catches cold। जब फ्रांस को सर्दी होती है, उन्हें छींक आना स्टार्ट होता है, तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट कहा गया था, क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके हो क्लास 9 में कि 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड एंड इट कंटिन्यूड टिल नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस। यानी फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ एम्परर के अगेंस्ट में, और रिवॉल्यूशन केम टू एन एंड। अगेन वन पर्सन who was we can say he was the son of the revolution, because he made himself leader, he made himself emperor with the ideas of revolution. तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट जिन चेंजेस को लेकर के आए, वही चेंज जो है नेशन के आइडिया को फुलफिल करता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन से आइडियाज़ को लेकर के आए? तो नेपोलियन बोनापार्ट लेकर के आए आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री, यानी द फादरलैंड। ला पैट्री इज़ अ फ्रेंच वर्ड एंड ली सिटोयन यानी द सिटीजन। पहले लोग जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन एम्परर के आइडेंटिफिकेशन से रिलेट करते थे, यानी लैंड से उनका रिलेशन बहुत कम था। फादरलैंड और सिटीज़न जैसे वर्ड को लोग नहीं समझते थे, वो अपने आप को राजा का प्रजा समझते थे, देश के नागरिक नहीं समझते थे। लेकिन अब आया ला पैट्री यानी फादरलैंड एंड ली सिटोयन यानी सिटीज़न। इन पर एम्फेसाइज किया गया, यानी लोग अब सिटीज़न बन गए और फादरलैंड का कंसेप्ट आया। फ्रांस ने अपना नेशनल फ्लैग बनाया, जिसमें रेड, ब्लू और वाइट कलर था। तो ये ट्राई कलर फ्लैग बिकेम अ सिंबल, इट वाज नॉट अ सिंबल ऑफ रॉयल स्टैंडर्ड बट इट वाज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रांस में एक कॉमन लैंग्वेज आया, डेट वाज फ्रेंच। बट एज यू नो नेपोलियन फॉट मेनी बैटल्स एंड ऑलमोस्ट ही वोन द एंटायर यूरोप। तो नेपोलियन ने जिस जिस कंट्री पर रूल किया, वहाँ उन्होंने कॉमन लैंग्वेज दिया, यानी रीजनल डायलेक्ट्स, यानी रीजनल लैंग्वेज जो बोला जाता था, दैट केम टू एन एंड एंड इन दैट प्लेस फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, एक नया संविधान आया जिसने कि एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड किया। यानी अब क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह की थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। हर स्टेट का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, क्योंकि यूरोप में तो बहुत सारे राजा हुआ करते थे और सबका रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट था। अब यूरोप के एक राजा हुए जिन्होंने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दिया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज पहले क्या था कि यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड देयर वर डिफरेंट मोनार्क्स। अब क्या था कि जितने भी मोनार्क थे उनकी अपनी अपनी तरह के टैक्सेस भी थे, यानी कोई एक एरिया एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाता, इफ़ दे पास 20 किलोमीटर्स दे हैड टू पे अ न्यू टैक्स। तो कस्टम ड्यूटीज केम टू एन एंड। मैनोरियल ड्यूज, यानी जो पीजेंट्स होते थे उन्हें मैनर्स को, यानी मैनर्स जिनके अंडर में लैंड होता था, उनको बहुत तरह के टैक्सेस देने पड़ते थे, ड्यूज देना पड़ता था। अब पीजेंट्स को उनको उनका अपना लैंड मिल गया, तो ऑटोमेटिकली दे नीड नॉट टू पे एनी मैनोरियल ड्यूज, यानी मैनर को
उन्हें अब किसी तरह की कोई ड्यूज़ या टैक्सेस नहीं देनी है, बिकॉज दे हैड देयर ओन लैंड। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेयर अडॉप्टेड। वेट्स एंड मेजर्स, पहले क्या था कि वेट्स एंड मेजर्स को का किसी तरह का कोई यूनिट नहीं था। अब वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया गया, वेट्स एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया। इट मीन्स कि नेपोलियन ऐसे चेंजेस को लेकर के आए जिसने लोगों को कनेक्ट किया, जो यूनिफॉर्मिटी लेकर के आया। नेशनल हिम्स को लिखा गया, ओथ्स ली गई, जो जो देश के लिए सैक्रिफाइस करते थे उन्हें मार्टियर कहा गया। तो इट मीन्स कि दीज आइडियाज वेयर अ रीबिल्डिंग फैक्टर इन मेकिंग ऑफ अ नेशन। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ नेपोलियन, जिसे बहुत फेमस है, जिसे कहते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या फ्रेंच सिविल कोड ऑफ 1804। जब नेपोलियन राजा बने 1804 में, और ही कंटिन्यू टू रूल फ्रांस अप टू 1813, तो नेपोलियनिक कोड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि देखो इस कोड में जो जिन चीज़ों को लाया गया था, इसने नेशन के बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो सबसे पहले क्या था कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। पहले क्या था कि अगर किसी का बर्थ किसी नोबल के फैमिली में होता है, तो वो उसके पास जो है बाय बर्थ उसके पास लैंड राइट्स था। अब क्या है कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जब बर्थ के साथ जो एडवांटेज पहले मिला करता था, दैट केम टू एन एंड, और लॉ के सामने इक्वेलिटी लेकर के आई। देन केम द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम यूरोप में एक तरह के सिस्टम थे जो कि फ्यूडल सिस्टम कहा जाता था, जिसे हम लोग हिंदी में सामंतवादी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में जो पीजेंट्स होते थे वो सबसे नीचे थे। फिर पीजेंट्स को सर्फ कहा जाता था। पीजेंट से ऊपर जो है मैनर्स होते थे, और मैनर्स के पास ही लैंड होता था। लैंड के जो देखो, वैसे तो फ्यूडल सिस्टम में सबसे ऊपर मोनार्क थे, किंग थे। फिर किंग के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी था वो नॉबल्स का था। फिर नॉबल्स के बाद फिर हायरार्की चलता रहता था, और सबसे नीचे जो है मैनर्स होते थे, सर्ब्स होते थे, सर्ब्स के ऊपर मैनर्स होते थे। तो फ्यूडल सिस्टम फाइनली केम टू एन एंड, एंड मैनोरियल ड्यूज दैट ऑल्सो केम टू एन एंड, यानी पीजेंट्स को, मैनर्स को किसी भी तरह का कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था व्हेन नेपोलियनिक कोड वाज इम्प्लीमेंटेड। राइट टू प्रॉपर्टी दी गई, यानी हर किसी को लैंड दिया गया। रिमूवल ऑफ गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस इन टाउन। देखो गिल्ड क्या होता है, तो इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ आर्टिशंस, एसोसिएशन ऑफ बिजनेसमैन। तो ये जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जैसे अगर किसी अर्बन एरिया में अगर कोई नया मर्चेंट अगर चाहता कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करता, या नया आर्टिशन जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करता, तो जो अर्बन एरिया में गिल्ड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी ये जो ग्रुप होता था बिजनेसमैन का, आर्टिशंस का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसे मान लो कि अगर 20 पीपल का, 20 आर्टिशंस का एक ग्रुप है, और अगर कोई न्यू आर्टिशन है वो चाहता है कि वो भी उस ग्रुप को ज्वाइन करे, तो डैट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल, बिकॉज दे यूज टू कंट्रोल द मार्केट। ना सिर्फ वो मार्केट को बल्कि वो प्राइस को भी कंट्रोल करता था, और ये भी डिसाइड करता था कि हु विल वर्क एंड हु विल नॉट वर्क। तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन के कारण जो है नए लोग टाउन्स में, वो लोग अपना किसी बिजनेस या कोई आर्टिशन है वो अपने आर्टिस्टिक स्किल को दिखाना चाहता है, तो दैट यूज टू बिकम वेरी मच इम्पॉसिबल। तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को टाउन से हटा दिया गया। उसके बाद आया यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। लॉज को बिल्कुल सिमिलर किया गया, वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया गया। यानी वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज मीन्स कि अब जो है सब, हर किसी चीज़ों का यूनिट था, और सब कुछ बहुत क्लियर था, सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट था, ताकि कोई भी किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करे तो डैट विल बी क्वाइट क्लियर। और नेशनल करेंसी को अडॉप्ट किया गया, नेशनल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया, बिल्कुल इक्वेलिटी लेकर के आए नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ना सिर्फ उन्होंने फ्रांस में वो चेंज लेकर के आए, बट ही कंसिडर्ड एज अ हार्बिंगर, अ मैसेंजर ऑफ लिबर्टी इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप ऑल्सो।
तो ड्यू टू दिस नेपोलियनिक कोड, यानी नेपोलियन ने एक तरह से यूरोप के कंट्रीज़ को कनेक्ट किया। तो एज ही कनेक्टेड ऑल द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, तो दैट ब्रॉट अ फीलिंग ऑफ कॉमननेस अमंग द पीपल ऑफ यूरोप। पहले लोग अपनी आइडेंटिटी मोनार्क से कनेक्ट करते थे, अब लोग अपनी आइडेंटिटी अपने लैंड से कनेक्ट कर रहे थे। तो दैट डेवलप्ड अ न्यू आइडिया ऑफ फादरलैंड, जिसे हम लोग ला पैट्रियाई भी कहते हैं। अगेन कम इन दिस मैप, फिर से देखो ये मैप और आज के मैप में, एज आई टोल्ड अर्लियर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इस मैप में तुम लोग देख रहे हो स्पेन है, पोर्टुगल है, फ्रांस है, जर्मनी है, फिर देखो बिल्कुल छोटा सा बेल्जियम है, कैपिटल ब्रुसेल्स, जो कि तुम लोग पॉलिटिकल में भी पढ़ चुके हो। फिर देखो इसे तो बहुत अच्छे से देखोगे, यहाँ हियर यू कैन सी हियर ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, क्योंकि ये सब कुछ फिर से आने वाला है। तो दीज एरियाज़, फिर नाउ कम इन हियर, यहाँ देखो ये पूरा ग्रीन जो है, ये पूरा का पूरा ग्रीन जो है, ये इटली है। तो ये मैप प्रेजेंट मैप ऑफ यूरोप है। और फिर अब हम लोग आ जाएंगे इस मैप में। ये मैप था उस समय का व्हेन नेपोलियन बोनापार्ट फाइनली डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू, जब नेपोलियन हार गए बैटल ऑफ वाटरलू में। और उसके बाद जो है, जो यूरोप का मैप रेडी हुआ वो कुछ इस तरह का मैप था। और इस मैप को देख करके ये समझ लो कि यूरोप जो है उसमें एम्पायर्स थे। तुम लोग इसमें देख रहे हो कि ऑस्ट्रियन एम्पायर, यानी ये ऑस्ट्रियन एम्पायर नहीं, इसे उस समय कहा जाता था हैब्सबर्ग एम्पायर। इट वॉज कॉल्ड हैब्सबर्ग एम्पायर। ऑस्ट्रियन एम्पायर वॉज एक्चुअली हैब्सबर्ग एम्पायर। फ्रांस में नेपोलियन थे, लेकिन जब नेपोलियन को सारे कोलिशन ने मिलकर के डिफीट दे दिया, तो उसके बाद जो है लुइस 16 के ही फैमिली के, उनके ब्रदर को लुइस 18 को, ही वॉज गिवन द क्राउन। तो फ्रांस के राजा बन गए लुइस 18। तो इट मीन्स कि उस समय का जो यूरोप का मैप था और आज यूरोप का जो मैप है, इट वॉज क्वाइट डिफरेंट। तो यही अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि ये डिफरेंस जो था उसे नेपोलियन ने कैसे दूर किया, और फाइनली किस तरह से वहाँ के लोगों ने स्ट्रगल किया टू फॉर्म देयर ओन नेशंस। नाउ कम इन द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी इन द मिड 18th सेंचुरी। वी आर टॉकिंग अबाउट मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी में एक ग्रुप ऐसा था जिनके पास लैंड था। इन्हें एरिस्टोक्रेटिक क्लास कहा जाता था। दे वर द लैंडेड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। और ये बहुत कम थे पॉपुलेशन में, और इनका जो अपने ग्रुप के साथ जो रिलेशन था, दैट वाज रिलेशन बेस्ड ऑन मैरिज। ये छोटा सा ग्रुप था, लेकिन चूंकि उनके पास लैंड था, तो दे वर क्वाइट डोमिनेटेड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में इनका जो इंटरफेरेंस था, जो इंटरफेयर ये बहुत ज़्यादा किया करते थे। सेकेंड कैटेगरी में जिनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, ये थे पीजेंट्स, वर्कर्स, जिनका कंडीशन सोसाइटी में बहुत मिजरेबल था। लेकिन नेपोलियन के समय इन्हें लैंड दिया गया था एंड दे वे आर वर्किंग इन देयर लैंड। लेकिन पहले की यूरोपियन सोसाइटी में अगर हम लोग पूरे यूरोप को देखें, तो वहाँ तो राजा ही थे, और राजा के समय दो ग्रुप के लोग थे। एक ग्रुप ऐसा था जिनके पास लैंड था, दे वे आर क्वाइट डोमिनेटेड इन द सोसाइटी, इन पॉलिटिक्स। और दूसरा ग्रुप जो था वो था सर्ब्स का, जिसे पीजेंट्स कहा जाता था, एंड देयर कंडीशन वाज वेरी मिजरेबल। लेकिन ये तीसरा ग्रुप जो था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ये थे एडुकेटेड मिडिल क्लास। इनके लिए वर्ड यूज़ किया गया लिबरल्स। ये सारा वर्ड बाद में तो आता ही रहेगा। दे आर लिबरल्स। लिबरल्स मीन्स कि इनकी जो सोच थी, दे आर लिबरल्स, यानी इनकी जो सोच थी दैट वाज वेरी ब्रॉड। ये बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। और ये न्यू मिडिल क्लास इसलिए कहा गया बिकॉज दे वेर एडुकेटेड, दे वेर हैविंग लॉट ऑफ वेल्थ, दे वेर हैविंग वॉयजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तुम लोग जान रहे हो कि वास्को डिगामा इंडिया आए थे और 1448 में, और उन्होंने इंडिया के सी रूट को खोजा था। तो ये एक वास्को डिगामा नहीं थे, दे वर सीरीज ऑफ वॉयजेस जो कि लगातार चल रहा था। और
सी रूट्स को खोजा जा रहा था और डिफरेंट डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में या फिर अफ्रीका में ये मिडिल क्लास जो है ये लोग एक्सप्लोर करते थे, वॉयजेस करते थे। डेंस फॉरेस्ट में, अमेजन के फॉरेस्ट में, नाइल रिवर में, हर जगह ये लोग जा कर के जो है वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे, वहाँ के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और ये आकर के अपने रूलर्स को बताते थे। इट मीन्स कि मिड 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, यूरोप में इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी और इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने वाले कौन थे? तो ये मिडिल क्लास के लोग थे जिनके पास वेल्थ था। और जब भी इंडस्ट्री आती है तो उसके साथ दो नीड जो है बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। एक तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड इज़ वर्कर्स टू वर्क इन द इंडस्ट्री, यानी वर्कर्स की नीड और रॉ मटेरियल्स की नीड। तो इन दोनों को कैसे पूरा किया जाए, ये इंफॉर्मेशन न्यू मिडिल क्लास ला करके अपने मोनार्क्स को देते थे ये लोग। तो न्यू मिडिल क्लास वे वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने अपने वेल्थ को इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया, दे ब्रॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। तो इसलिए ये इनकी सोच जो है लिबरल थी और ये लोग सब चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी बने, एक ऐसा गवर्नेंस हो जिनमें उनका कंसेंट हो, यानी उनसे उनसे राय ली जाए, उनसे पूछा जाए, क्योंकि दे आर द मेजर टैक्स होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी। वो कंट्री के डेवलपमेंट में, यानी वो मोनार्क्स को सबसे ज़्यादा पे करते हैं। तो ऐसे में जो है उनका कंसेंट भी इम्पॉर्टेंट हो। तो ये यूरोप का मैप तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आ जाओ मिड 18th सेंचुरी का यूरोप किस तरह का था। तो देखो, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि इन द मिड 18th सेंचुरी जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, दीज वेर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स। जैसे देखो, डचीज कहा जाता था। डचीज मीन्स कि टेरिटरी रूल्ड बाय अ ड्यूक, टेरिटरी रूल्ड बाय अ ड्यूक, डचीज। डचीज हम लोग किसे कहेंगे? जैसे देखो क्या था कि आज हम लोग जानते हैं कि इंडिया में 28 स्टेट्स है, लेकिन एक समय ऐसा था जब इतने सारे स्टेट्स नहीं थे। हर जगह पर छोटे छोटे राजा हुआ करते थे और उनकी अपनी स्मॉल किंगडम्स होती थी। तो कुछ ऐसा ही था कि राजा जब अपना लैंड दिया करते थे अपने निचले लेवल के ऑफिशियल्स को, नॉबल्स को, तो उन्हें ड्यूक कहा जाता था। तो ड्यूक जिस टेरिटरी में वो लोग रूल करते थे उन्हें डचीज कहा जाता था। तो टेरिटरी रूल्ड बाय अ ड्यूक, जर्मनी में, इटली में, स्विट्जरलैंड में बहुत सारे डचीज थे। कैंटोन्स में डिवाइडेड था। कैंटोन्स मीन्स कि एक डिस्ट्रिक्ट का जितना एरिया होगा तो डेट वाज कॉल्ड कैंटोन। वहाँ के भी ऑटोनोमस रूलर्स हुआ करते थे। तो इट मीन्स क्या है कि अगर आज के जर्मनी को देखें तो वहाँ पर एक जर्मनी है, एक कंट्री है, लेकिन उस समय जर्मनी में 300 पार्ट्स था और 300 में 300 राजा थे। इटली का भी कंडीशन कुछ ऐसा ही था कि इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। किसी जगह पर इंग्लैंड रूल करता था, किसी जगह पर फ्रांस रूल कर रहा था, some part was ruled by the pope. So it means कि Italy was also divided, Switzerland was also divided into different small kingdoms. तो it means there was lot of division। हर जगह राजा हुआ करते थे और वहाँ के जो सोसाइटी में जो लोग थे दे वर वर्स्ट सफरर। और जहाँ मोनार्क होगा वो तो ऑटोक्रेटिक होगा ही। ऑटोक्रेटिक रूलर थे, दे ऑलवेज थॉट अबाउट देयर ओन वेलफेयर। उनकी लाइफ बहुत लग्जरियस थी, निरंकुश शासक थे मोनार्क्स। तो पीपल जो इन मोनार्क्स के अंडर में रहते थे उनका लैंग्वेजेस कभी भी सिमिलर नहीं था। दे वेर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस उनके। जैसे अगर आज फ्रांस ने अटैक कर दिया इटली पर, तो इटली जो है केम अंडर, इटली का एक पार्ट जो है इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस। तो उस पार्ट के लोग जो है हो सकता है वो इटालियन बोलते हैं, लेकिन उनके जो रूलर है वो फ्रेंच बोलते हैं। तो इट मीन्स कि रूलर का लैंग्वेज डिफरेंट, सब्जेक्ट्स यानी प्रजा की लैंग्वेज डिफरेंट थी। तो देयर कल्चर वॉज नॉट कॉमन, कल्चर वॉज डिफरेंट, या उनकी जो आइडेंटिटी थी वो डिफरेंट था। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसे ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर कहते हैं। हियर यू कैन सी हियर हैब्सबर्ग एम्पायर, दिस इज
ये है हैब्सबर्ग एम्पायर। और फिर अब यहाँ देखो, यहाँ तुम उसी एम्पायर के जगह पर बहुत सारे कंट्रीज़ को तुम लोग देख रहे होगे। तो अगर हम लोग उस समय के हैब्सबर्ग एम्पायर को ही अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, तो उसमें देखो बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लॉम्बार्डी, लॉम्बार्डी यानी लॉम्बार्डी वेनिशियन, ये दोनों इटली में है आज। तो हैब्सबर्ग एम्पायर वाज रूलिंग ओवर, जैसे मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर इंडिया में वो सेटअप हुआ और वो रूल करता है अफगानिस्तान में। तो इट मीन्स कि एम्पायर है इंडिया का, दे आर रूलिंग इन अफगानिस्तान। या अफगानिस्तान के जो रूलर्स है मोहम्मद गोरी, उन्होंने इंडिया में अटैक किया और वो इंडिया पर रूल करते हैं। तो इंडिया के पॉपुलेशन का लैंग्वेज डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, और उनका कल्चर डिफरेंट है जिन्होंने इंडिया में अटैक किया। तो इन द सेम वे हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में जो इटली आता था, उसका लॉम्बार्डी था, वेनेशिया था, उनका लैंग्वेज जो है बिल्कुल अलग था, इटालियन था। या फिर हंगरी, प्रेजेंटली हंगरी एक अलग कंट्री है, वहाँ के जो लोग थे उनका जो लैंग्वेज था दैट वाज मैगियर। और आधे से ज़्यादा लोग ऐसे भी थे जो कि बहुत तरह का लैंग्वेज बोला करते थे। तो इट मीन्स कि जो डिफरेंसेस था वो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनमें कॉमन क्या था? कॉमन बस ये था, जो लास्ट लाइन आई हैव मेंशन्ड हियर, कि द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिगियंस टू द एम्परर। एक ही चीज़ जो कि उनमें कॉमन थी कि उनके जो एम्परर थे वो कॉमन थे। एम्परर के अंडर में जो एम्पायर था दैट वाज नॉट कॉमन। एक एम्पायर के अंडर में कोई इटालियन बोल रहा था, कोई मैगियर बोल रहा था, समवन वाज स्पीकिंग फ्रेंच, समवन इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, यानी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा था। लेकिन उनके एम्पायर एक थे, मोनार्क एक थे, लेकिन वो मोनार्क बहुत ऑटोक्रेटिक थे। दे डिड नॉट हैव एनी रिलेशन विद देयर सब्जेक्ट्स। प्रजा के साथ उनकी बस इतनी ही रिलेशन थी कि दे नीड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम देयर subjects. That was their relation. Now liberal nationalism, देखो ये टॉपिक है लिबरल नेशनलिज्म। आज का जो जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, बेल्जियम है, इन सब का जो फॉर्मेशन है उसमें जिन जिन लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, जिन लोगों का, उनकी जो सोच थी वो अलग अलग थी। जैसे एक सोच वाले जो लोग थे उनको लिबरल्स कहा जाता था, दूसरे सोच वाले लोगों को रेडिकल्स कहा जाता था, तीसरे सोच वाले को रिवॉल्यूशनरीज कहा जाता था। ये तीनों वर्ड तुम्हारे लिए न्यू नहीं है, तुम लोग अपने हिस्ट्री में पढ़ चुके हो। फ्रीडम स्ट्रगल में भी कुछ ऐसा ही था कि कांग्रेस में भी बहुत तरह के लोग थे। एक ग्रुप था जिन्हें नरम दल कहा जाता था, एक को गरम दल कहा जाता था, एक को क्रांतिकारी कहा जाता था। यानी नरम दल, गरम दल यानी रेडिकल्स, ओके, moderates and revolutionaries. Moderates नरम दल, radicals गरम दल, and revolutionaries क्रांतिकारी। नरम तो नहीं थे, इतना गरम थे कि वो ब्रिटिश को बिल्कुल उनको मज़ा चखाते थे। मैंने वो ब्रिटिश को बताते थे कि अगर आप हमसे डरिए, आप डर करके जो है आप इंडिया को छोड़िए। ना सिर्फ वो डराते थे बल्कि अपने लाइफ को भी सैक्रिफाइस करते थे फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। यानी जिस तरह से इंडिया में भी डिवीज़न था ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, इन द सेम वे यूरोप में भी बहुत तरह के लोग थे। लिबरल्स कौन थे, दैट वी विल रीड इन दिस टॉपिक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल्स कौन थे, देन रिवॉल्यूशनरीज कौन थे। तो लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो लोग थे जो कि चाहते थे कि गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड ऑन देयर ओन कंसेंट, यानी सरकार जो बने उसमें उनका कंसेंट हो, नेशनल यूनिफिकेशन हो, नेशन का फॉर्मेशन हो, नेशन स्टेट बने, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। नेशन स्टेट बने ये इसलिए चाहते थे क्योंकि अगर नेशन स्टेट बनता, नेशन हम लोग कहते हैं एक ऐसा एरिया in which the majority of the citizens, not only its rulers, came to develop a sense of common identity and shared history. तो इट मीन्स कि ये नेशन स्टेट का फॉर्मेशन चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। ये इसलिए इस तरह का पॉलिटिक्स चाहते थे क्योंकि जब सिमिलैरिटी होगा, जब सरकार उनके कंसेंट से बनेगा, तो फिर जो है उनका भी
गवर्नमेंट में उनकी बात को भी सुना जाएगा, उनका भी पार्टिसिपेशन होगा, उनका भी शेयर होगा. तो ड्यू टू दिस पॉलिटिकली दे वांटेड गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन कंसेंट. सोशली वो चाहते थे कि पार्शियलिटीज ऑफ बर्थ राइट्स जो है दैट केम टू एन एंड. पार्शियलिटी ऑफ बर्थ राइट ये वर्ड यूज़ किया गया उस समय यूरोप का जो फ्यूडल सिस्टम था उसके लिए कहा गया कि अगर कोई नोबल है और नोबल को लैंड राइट जो है बर्थ के साथ मिल गया तो ये बर्थ राइट नहीं होना चाहिए. इसके अगेंस्ट में कहा कि कोई नोबल है तो आपके पास लैंड रहेगा, आप जो है लग्जरियस लाइफ जिएंगे, ना सिर्फ आप बल्कि आपका पूरा जनरेशन लग्जरियस लाइफ को जिएगा, और हमारा ना गवर्नमेंट में किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन होगा और ना हमें कभी कोई राइट मिलेगा. तो इसलिए सोशली वो चाहते थे कि क्लास बेस्ड पार्शियलिटी शुड कम टू एन एंड. और वो ये भी चाहते थे कि सर्वडॉम बॉन्डेड लेबर, सर्वडॉम यानी सबसे निचले स्तर पर जो पीजेंट्स थे या बॉन्डेड लेबर थे, दीज थिंग्स कम टू एन एंड. यानी हर किसी को राइट मिले, लैंड का राइट मिले. तो ये लिबरल नेशनलिस्ट चाहते थे. और इकोनॉमिकली ये लोग चाहते थे कि एक ऐसा मार्केट हो जिसमें फ्रीडम हो, स्टेट उस पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन ना लगाए. क्योंकि जैसे अभी हम बता रहे थे कि अगर कोई 5 किलोमीटर चलता था तो उसे एक टैक्स देना पड़ता था, अगेन 5 किलोमीटर अगेन टैक्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस वेयर इम्पोज्ड. तो इट मीन्स कि इट बिकेम क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द बिजनेसमैन, फॉर द न्यू मर्चेंट्स, फॉर द न्यू मिडिल क्लास टू कैरी ऑन देयर ट्रेड. ट्रेड में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था. अगर कोई व्यापार करना चाहता, बिजनेस करना चाहता तो रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा था. तो लिबरल्स मीन्स उनकी सोच जो है बहुत लिबरल थी, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे. यूरोप में बहुत तरह के लोग थे जिसमें एक कैटेगरी था लिबरल्स का. लिबरल्स पॉलिटिकली चाहते थे कि गवर्नमेंट उनके कंसेंट से बने. सोशली चाहते थे कि क्लास बेस्ड पार्शियलिटी, क्लास के बेसिस पर जो पार्शियलिटी है वो ख़त्म हो. और जो जन्म से जो बर्थ राइट जो मिल जाता है लोगों को, कि कोई पॉलिटिकल फैमिली में बर्थ हुआ तो वो ज़िंदगी भर पॉलिटिक्स वही करेगा और प्रेसिडेंट कांग्रेस का वही बनेगा. तो दैट शुड कम टू एन एंड. और सर्वडॉम और बॉन्डेड लेबर जो है ये भी एंड हो जाए. और इकोनॉमिकली चाहते थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, गुड्स का, कैपिटल का. कैपिटल मीन्स कि हम लोग अगर किसी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो वो उस पर जो लगने वाला जो रेस्ट्रिक्शन है दैट शुड कम टू एन एंड. तो दैट वाज वांटेड बाय द लिबरल्स. So now I am ending this lecture, and if you have any problem you may ask me in my class. I hope you have understood this topic. Okay, God bless you all.